Okay students, let us start with today's session. So why we have gathered here is, so हमें डिस्कस करना है मेनली कि हमने अप्रैल और मई एग्जाम्स को कैसे टैकल करना है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ओनली, ठीक है. बट बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं. जल्दी से बेटा जिस बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है, क्विकली गिव मी योर इंट्रोडक्शन. इन इंट्रोडक्शन आई जस्ट नीड योर नेम, what you are doing right now in academics, and what was your class 12 score. You can just answer these 3 questions, and whether this is your first exam of actual or have you given any actual exam earlier as well. So you can answer these 4 questions, not much information. Your name, your class 12 score, what you are doing in academics right now, and whether it's your first exam or have you given any exam earlier, so that I can get to know about the audience. किस तरीके की audience हमारे साथ आज join हुई है. Quickly students, quickly respond on WhatsApp only. You can answer this question on 9910427442. Throughout the session, कुछ भी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कुछ भी आप लोगों को मेरे से पूछना है, you can just ping on this WhatsApp number. Quickly, I am waiting for your responses. We will have a quick introduction. Then we will start with today's content. Waiting for responses students. Okay, I have started receiving responses. So we have Priyanshi Seth with us. She is in Delhi College of Arts and Commerce, Economic Honors she is doing, and she has scored 93% in class 12th. Okay, welcome Priyanshi. Then we are having Paridhi Agarwal with us. She is doing BSc Statistics Honors and she is in first year and she has scored 97%, very good, in commerce background, and she has scored 100 in maths and first exam it will be. Welcome you Paridhi. Okay, then we have Rahul with us, Anamika with us. Some students have not giving me their full things, they have only given me their names. It's okay. In the meanwhile students, you can keep on typing your complete information. I think others are still typing. ठीक है, meanwhile जब मेरे पास responses आ रहे हैं तो तब तक हम start करते हैं. And students, those who have not given me their introduction, please give me. I will also read after the session as well. तो मुझे पता लगेगा आज के ऑडियंस हमारे पास क्या थी. So we have L Kohana with us. She is pursuing BSc Actuarial Science and she has scored 428 out of 500 in class 12. ठीक है. We have Rohan with us. He is doing BCom and he has scored 86%. Welcome you Rohan. ठीक है. Others meanwhile typing. हम start करते हैं. तो बेटा आज हम क्यों गैदर हुए हैं, रीज़न क्या है? क्या हमने ये समझना है एक्चुअल क्या है, क्या हमने ये समझना है एक्चुअल स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या सोसाइटीज़ है, क्या क्राइटेरिया है दोनों सोसाइटीज़ को करने का? नहीं, ये सब चीज़ें मैं एज्यूम कर रहा हूँ. आज के सेशन में आने से पहले आप सबकी सारी चीज़ें क्लियर है. आज के सेशन में उन बच्चों ने ज्वाइन करा है जो मन बना चुके हैं कि हमने एक्चुअल स्टार्ट करना है. उनको सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए कि हमने अप्रैल और मई डाइट के एग्जाम्स को अप्रोच कैसे करना है, या फिर जो डिसाइड कर चुके हैं कि हमने एक एग्जाम के साथ जाना है, 2 के साथ जाना है, 3 के साथ जाना है. हमने सिर्फ अब आगे स्टार्ट करना है कि किस तरीके से हमें अपनी प्लानिंग बनानी है उस डाइट को अप्रोच करने की. तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. तो जल्दी से येस और नो लिख दो. आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? क्या सब डिसाइड कर चुके हैं या अभी भी किसी को एक्चुअल को रिलेटेड कन्फ्यूजन है? अगर कोई भी है ऐसा, इट्स ओके. आई विल आस्क माई टीम टू कनेक्ट विद यू. दे विल गाइड यू whether you can do actual or whether you should pursue actual science or not. That is the primary thing. But I am expecting कि इस सेशन में आने से पहले सब अपना मन बना चुके हैं और सब एक्चुअल ज्वाइन कर चुके हैं या फिर करने का सोच रहे हैं. यस, तो ठीक है. मेरे पास इंट्रोज आ रहे हैं बहुत सारे. ठीक है, सबके स्ट्रेट अवे यसेस आ रहे हैं. यस सर, ऑलरेडी डिसाइडेड टू स्टार्ट विद एक्चुअल साइंस एग्जाम्स. सबके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. ठीक है. सो वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. तो सब डिसाइड कर चुके हैं. अब बेटा हमने ये डिसाइड करना है कि कैसे स्टार्ट करें.
जैसे आप में से बहुत सारा ऑडियंस है जो अभी अभी जिन्होंने 2023 में अपनी 12th कंप्लीट करी है, तो 12th कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन था एग्जाम्स देने का, वो कौन सी डाइट का था? वो सितंबर डाइट का था। आई एम टॉकिंग अबाउट IFOA। ज़्यादा मैं बात IFOA की करूँगा बिकॉज अगेन 80 to 90% ऑडियंस स्टार्ट विद IFOA ओनली। बहुत कम बच्चे तो जो II ऑप्ट करते हैं, बट इट्स ओके अगर आपको II भी ऑप्ट करना है। सिर्फ एक क्राइटेरिया उसमें एक्स्ट्रा है कि आपको ACET एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो अगेन आई एम नॉट डिगिंग इनटू दैट बिकॉज मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर है। 2 सोसाइटीज़ क्या एडमिशन क्राइटेरियाज है, यहाँ पे हम सिर्फ ज़्यादा टारगेट करेंगे आज के सेशन में अप्रैल में डाइट को प्लान करने के लिए। तो हमारे पास अब क्या टाइम बचा है? तो आप में से कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो इस सेशन में नहीं अवेलेबल, ऑब्वियसली वो अपने सितंबर एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। जिन्होंने सितंबर एग्जाम्स में एग्जाम्स की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, उन्होंने 12th दिया और मई जून में उन्होंने अपने एग्जाम्स पिक करे। किसी ने 1 करा, किसी ने 2 करा, 3 नहीं करा क्योंकि छोटा डाइट था, तो 1 या 2 वाली ज़्यादा ऑडियंस थी और वो अपने सितंबर में भी एग्जाम्स देंगे। आप लोगों को मैं बोलूँगा थोड़ा सा आप लेट हो, थोड़ा सा लेट हो, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? क्योंकि देखो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि हमारे पास ग्रेजुएशन में 3 साल है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 2nd ईयर में है, 3rd ईयर में है और जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। नो नीड टू वरी, हम उसके ऊपर भी आएंगे। सो मेजरली मेरे पास 12th वाले बच्चे ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसको रेफर करके बोल रहा हूँ। तो 12th आप लोगों ने दिया था, मैंने आपको बोला कुछ बच्चों ने सितंबर के लिए प्लान करा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्टली अप्रैल और मई को डाइट को प्लान करने को अब सोच रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। बिकॉज देखो बेटा, हमारे पास 3 साल की ग्रेजुएशन है। 3 साल में हम आपको क्या बोलेंगे? यू शुड टारगेट टू क्लियर एटलीस्ट 6 एग्जाम्स। 6 एग्जाम्स क्लियर करने हैं। तो 1 सेमेस्टर हमारा मिस हुआ है, अभी हमारा 1 सेमेस्टर मिस हुआ है, लेकिन 5 सेमेस्टर्स में हमें 6 एग्जाम्स निकालने हैं। तो वो 6 एग्जाम्स निकालना कोई बहुत ट्रिकी टास्क नहीं है। तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? देखो, हमारे पास 4 तो ये एग्जाम्स है, CS1, CM1, CS2, CM2। हम इनमें से किसी को भी क्लब करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन उस पर भी मैं आऊँगा, आप क्लब कर सकते हो। और साथ में 2 एग्जाम्स हैं हमारे पास, CB1, CB2। ये हम किसी भी एग्जाम के साथ क्लब करके देंगे ही देंगे। जैसे अगर मैं अभी अप्रैल की बात करूं तो मोस्टली बच्चा या तो CS1 CB2 ऑप्ट कर चुका है या CM1 CB2 ऑप्ट कर चुका है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा ट्रिकी कॉम्बिनेशन पिक करा है, CS1 CM1 CB2। तो मैं इस टाइप के बच्चों पे आऊँगा अभी, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में ये 6 एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। तो देखो, एक हमारा सेमेस्टर मिस हुआ है, वी हैव 5 सेमेस्टर्स। तो 5 सेमेस्टर्स में मान लो एक सेमेस्टर में हमने CS1 CB2 ऑप्ट कर लिया, फिर एक में हमने CM1 CB1 ऑप्ट कर लिया। तो 2 सेमेस्टर्स में हमारे 4 एग्जाम्स टारगेट हो सकते हैं। अब रिमेनिंग हमारे पास 3 सेमेस्टर्स बचेंगे। उन 3 सेमेस्टर्स में हमें 2 बड़े एग्जाम CS2 एंड CM2 टारगेट करना। तो आप देख रहे हो कितना ईजिली हमारे इन 3 साल में ये एग्जाम्स टारगेट हो सकते हैं। लेकिन जितना मैं ईजी बोल रहा हूँ, क्या उतना ईजी होने वाला है? उतना ईजी होगा अगर आप लोग जिस तरीके से हम आपको गाइड करेंगे उस तरीके से चलोगे। एक्चुअल में आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, लेकिन अगर एफर्ट्स डालोगे तो ये बहुत आपको अच्छे फ्रूट्स देने वाला है। ठीक है, कैसे? देखो बेटा, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा? हमारी एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो। लेकिन एक आपके पास सेम आपका पीयर है क्लास में जिन्होंने सेम कॉलेज से सेम परसेंटेज से एग्जाम्स क्लियर करे और ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, और साथ में एक आपका रिज्यूम है जहाँ पे आपने सेम परसेंटेज से सेम कॉलेज क्लियर करा है बट विद 6 एक्चुअल एग्जाम्स। तो आप बहुत ज़्यादा एज पे हो एज कम्पेयर टू योर पीयर। कैसे? जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, यू विल स्टार्ट अप्लाइंग योर रिज्यूम्स इन एक्चुअल फॉर्म्स। एंड प्लस पॉइंट क्या होगा? हमारे ऑलरेडी 6 एग्जाम्स क्लियर है, 13 में से 6 एग्जाम्स क्लियर है, तो आप बहुत इजीली फिल्टर आउट हो जाओगे और बहुत इजीली आपको कंपनीज अप्रोच करेंगी। तो अगेन बहुत इजीली प्लेस होंगे। तो ये मोटिवेशन है हमारे पास एग्जाम्स को क्लियर करने का इन आवर 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ उन बच्चों पे जो ऑलरेडी अपने 2nd ईयर 3rd ईयर में या फिर जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपके लिए क्या मोटिवेशन है बेटा? तो आपको क्या करना है? जो 2nd ईयर वाले हैं दे कैन टारगेट 4 एग्जाम्स, और जो 3rd ईयर वाले हैं दे कैन टारगेट अब 2 या 3 एग्जाम्स को टारगेट कर चुके हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन 3rd ईयर। और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनको तो मेरा सजेशन है बेटा बिल्कुल 3 एग्जाम्स पिक करके स्टार्ट करो, बिकॉज आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है करने को। 7 to 8 मंथ्स है अप्रैल में और मई डाइट में,
और यहाँ पे 3 एग्जाम्स आप ऑलरेडी डाल सकते हो। अभी मैं आऊँगा इंडिविजुअली हर एग्जाम पे हम कितना कितना डाल सकते हो। सो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर पुटिंग इन क्वेश्चंस। तो बेटा अभी के लिए मैं आपको बोलूँगा अपने क्वेश्चंस पॉज कर सकते हो आप 15-20 मिनट्स, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ और उसके बाद मैं बिल्कुल आप लोगों के क्वेश्चन ही लेने वाला हूँ रिमेनिंग ऑफ द सेशन में। सो वी विल मेक दिस सेशन वेरी वेरी इंटरेक्टिव। लेकिन 15-20 मिनट्स में कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको अभी साइड रख दो और सिर्फ मेरे को सुनने की कोशिश करो। तो अब हम आ रहे हैं कि हम ऑलरेडी सितंबर में एंटर कर चुके हैं एंड वी विल बी प्लानिंग फॉर अप्रैल एंड मे टाइम। तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं? तो पहले मैं थोड़ा बेसिक आपको आइडिया देता हूँ कि किस सब्जेक्ट में हम कितने आवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आता हूँ बेटा CS1। तो मेजरली स्टूडेंट्स CS1 CM1 से स्टार्ट करते हैं। तो CS1 में यू कैन थिंक ऑफ पुटिंग 250 to 300 आवर्स। तो ये जो 300 में आपको नंबर दे रहा हूँ ना, ये बहुत मैं अपने आप को सेफ साइड रख के दे रहा हूँ कि CS1 में देखा जाए 300 आवर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप 300 आवर्स दे दोगे तो बहुत ईजिली आपके अच्छे चांसेस हो जाएंगे एग्जाम को किल करने के। वैसे ही अगर मैं CM1 पे आऊँ, यू शुड इन्वेस्ट 300 to 350 आवर्स। CB1 CB2 पे आऊँ तो यहाँ पे यू कैन इन्वेस्ट समवेयर अराउंड 200 to 250 मैक्स, मतलब ये भी 250 बहुत बड़ा नंबर है। आप मेरे लोअर लिमिट को ही लेके चलना, अपर लिमिट मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए लिखे हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा डिग इन करना पसंद करते हैं सब्जेक्ट में, तो उन बच्चों को वो अपर लिमिट ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं लोअर लिमिट लेके चलूँ तो बहुत है। अब हम लेके चलते हैं हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है अप्रैल और मे डाइट के लिए। मैं आपको थोड़ा ना विजन क्लियर कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। तो अप्रैल और मे डाइट के लिए हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है? अभी हम सितंबर में है, सितंबर स्टार्ट पे है, तो फुल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल को नहीं काउंट कर रहे, अप्रैल में एग्जाम्स है। अभी मैं एग्जाम डेट्स में भी आऊँगा कब कब हमारे एग्जाम्स है। तो वी हैव 7 मंथ्स। 7 मंथ्स में कितने डेज हैं? ऑन एन एवरेज 30 डेज इन ईच मंथ, तो 210 डेज है अभी हमारे पास। ठीक है, मैं पूरी आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। 210 डेज है। अब यहाँ पे आपके ऊपर आता है कि आप लोग कितने एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हो। यहाँ पे मैं आपकी एग्जाम्स प्लानिंग करवा रहा हूँ कि कितने एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हो आज से। कोई बच्चा होगा जो बोलेगा सर मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मेरे बस की नहीं है 1.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ना, मेरे पास और भी अपने टू डूज़ है। तो मतलब आपके पास मोटा मोटा बेटा, जो बच्चा 1.5 घंटा कह रहे हैं उसके पास मोटा मोटा हमारे पास 320-325 घंटे हैं। दे हैव 325 आवर्स। तो 325 आवर्स में बेटा कौन से एग्जाम्स मैच हो रही है? इधर CS1 और CM1। तो आप एक सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। बट बीइंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज और बीइंग इट एनीवेयर, अगर आप वर्किंग नहीं हो तो मुझे लग रहा है 1.5 घंटा, अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व, या तो आप क्रिकेट की अकेडमी ज्वाइन कर रखे हो या फिर आप कोई मतलब प्रोफेशनली डांस प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन अगर आप फुली एकेडमिक्स में इन्वॉल्व हो और अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो मैं भी कॉलेज गया हूँ, मुझे पता है कितनी पढ़ाई होती है कॉलेज में। मैं कह रहा हूँ हद मार के 6-7 घंटे निकाल दो, 7-8 घंटे आपके सोने के निकाल दो, 2-3 घंटे आपकी मस्ती के निकाल दो, तो 15-16 घंटे अगर हम साइड रख दे बेटा, 15-16 आवर्स, यू स्टिल हैव 8 आवर्स इन अ डे, 8 hours in a day, and in 8 hours, out of those 8 hours, if you are ready to give only 1.5 hours, it's up to you। आप स्लो चलना चाहते हो तो बिल्कुल आप ऐसा एक सब्जेक्ट उठाओ। अब हम आते हैं मेजरली उस कॉम्बिनेशन पे जो 80 to 90% स्टूडेंट्स ऑप्ट करती है, दैट इज इधर CS1 एंड CB2 और CM1 एंड CB2। तो मेजरली ऑडियंस इन दो में से किसी एक कॉम्बिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा करने के लिए हमें कितने आवर्स चाहिए? ये करने के लिए कॉम्बिनेशन हमें मोटा मोटा समवेयर अराउंड 500 आवर्स चाहिए और यहाँ पे समवेयर अराउंड 550 आवर्स चाहिए। तो देख रहे हो 210 डेज में अब मुझे इस 1.5 घंटे को इंक्रीज़ करके कितना लेके आना पड़ेगा? 2.5 to 3 आवर्स, जो कि 70 to 80% ऑडियंस करना पसंद करती है कि सर ये ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो 2.5 से 3 घंटे हम इन्वेस्ट करेंगे आज से, लेकिन वो आज से है। अगर आज के दिन के आपने 3 घंटे मिस करे तो कल वो 6 घंटे हो रहे हैं, कल के दिन के 3 घंटे मिस करे वो परसों फिर 9 घंटे, ये आपका क्यूमुलेट होता जाएगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको ये जो प्लान बना रहा हूँ 2.5 से 3 घंटे वाला, अगर कोई बच्चे मेरी ये वीडियो अक्टूबर नवंबर में देखेंगे तो उनको उस हिसाब से आवर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जल्दी ज्वाइन कर रहे हो, और अगर आप 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो आप उस टाइम को बहुत ईजिली डिवाइड कर सकते हो इन रिमेनिंग मंथ्स। तो जो बच्चे हमारे पास दिसंबर में भी ज्वाइन होते हैं, दिसंबर में भी ज्वाइन होते हैं, जो 2 सब्जेक्ट्स करते हैं, और ऐसा नहीं वो नहीं निकाल पाएंगे, वो बिल्कुल निकाल पाएंगे, लेकिन वहाँ पे बेटा जाके आपको 4-4, 5-5 घंटे देने पड़ेंगे दिन में, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट विद एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स।
बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए। बट अगेन मैं आप पे कोई ये कंपल्शन नहीं लगा रहा। अगर आपको अपने पे थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ रहा है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक बार एक एग्जाम करके देख लेते हैं, हमें एज अ नॉन मेंबर ही देना है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है बेटा, इस कॉम्बिनेशन से एक और चीज़ है, आप प्यूर श्योर होने चाहिए कि आई विल बी परस्यूइंग एक्चुअल, बिकॉज यहाँ पे आपको IFOA से 2 एग्जाम्स देने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक एग्जाम देना चाहते हो तो आप एज अ नॉन मेंबर भी दे सकते हो। एज अ नॉन मेंबर आप CS1 या CM1 एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन 2 एग्जाम्स देने हैं तो आपको मेंबरशिप लेके ही एग्जाम देने पड़ेंगे। वो उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो टीम आपको अपडेट कर देगी कब आपको मेंबरशिप के अप्लाई करना है। अगर आपको एज अ नॉन मेंबर देना है तो उसकी डेट्स कब ओपन होएगी, इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 2 एग्जाम्स हम ऑप्ट कर रहे हैं, तो वी शुड बी फुली श्योर दैट वी आर गोइंग इनटू एक्चुअल स्टेज। अब मैं आता हूँ एक बहुत ही ट्रिकी कॉम्बिनेशन पे, जो कि मेरे पास कुछ बच्चे हैं इस बैच में जिन्होंने उस कॉम्बिनेशन को पिक करा है, ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने CS1 एंड CM1 एंड CBT को पढ़ने को स्टार्ट करने को सोचा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ देंगे, लेकिन एटलीस्ट दे हैव फाइंड आउट दोस गट्स कि हम ये 3 सब्जेक्ट्स इकट्ठे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इसके आर्ट्स देख लें। इसके आर्ट्स बेटा समवेयर अराउंड कितने आएंगे हमारे पास, 800 to 900 लिख रहा हूँ। मैं इतना बड़ा गैप क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स हैं तो रिवीजन बार बार करने में एक्स्ट्रा टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने दिन है, दिन वही सेम है, 210 डेज है। मैं IFOA के लिए बात कर रहा हूँ, II के लिए आप ये मान लो रिवीजन में वो अप्रैल का मंथ निकल जाएगा, तो सेम ही है हमारे पास, क्योंकि हम मार्च मिड तक अपना IFOA दोनों का करिकुलम कंप्लीट करने का सोचेंगे। तो 800 to 900 आवर्स है और 210 डेज ही है, सो यू कैन डिवाइड समवेयर अराउंड 4.5 to 5 hours in a day starting from today only till your exam time। तो मैं डरा नहीं रहा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है कॉम्बिनेशन, 10% स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करते हैं। लेकिन अगेन इस कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास पता है अच्छी चीज़ क्या है कि अगर हम 3 के लिए जाते हैं ना तो एटलीस्ट 2 के लिए तो हम अच्छे से प्रिपेयर हो ही जाते हैं। वैसे 2 के लिए मैं अच्छी चीज़ ये बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे हैं तो आपको दोनों के दोनों देने ही देने हैं अप्रैल में, बिकॉज एग्जाम फिल करने का टाइम हमारे पास समवेयर अराउंड मिड फेब तक रहता है। मिड फेब या फेब एंड तक हमारे पास एग्जाम फिल करने का टाइम रहता है। तो वो हम उस टाइम पे डिसाइड करेंगे कि हमें 1 फिल करना है, 2 फिल करने हैं, या जिन बच्चों ने 3 ऑप्ट करे हैं 3 फिल करने हैं। 3 बहुत कम बच्चे फिल करते हैं, मतलब 5 out of 100 स्टूडेंट्स फिल करते हैं, ऐसे इतना कम रेशियो रहता है। बट मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, जिन बच्चों ने ऑप्ट करा है अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो, बिल्कुल बेटा गो फॉर इट। लेकिन अगेन जो 3 ऑप्ट कर रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए कि अभी आप इतने मोटिवेटेड हो कि हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन फेब आते आते आप बोलो सर नहीं तो हम तो सिर्फ CS1 दे रहे हैं, CM1 दे रहे हैं। उससे बेटर ये होगा कि आप आज से ही अपने आप को 2 सब्जेक्ट के लिए पुश करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी से ही आपको लग रहा है कि 4.5 to 5 आवर्स आज से अप्रैल तक देना बहुत मुश्किल है, तो गो स्लो, 2 सब्जेक्ट्स पिक कर लो। तो उस केस में मैं आपको बोलूँगा आप CM1 CB2 ही पिक करना, CS1 CB2 पे मत जाना, क्योंकि थोड़ा सा तो मैं आपको चैलेंज करो। तो 2 सब्जेक्ट्स पिक कर लो और आपको डेफिनेटली वो फरवरी में वो 2 सब्जेक्ट्स देने ही देने हैं। इज इट क्लियर? तो ये था हमारी प्लानिंग थी बेटा, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट्स की। इसमें किसी को डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट है, क्विकली रेज योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप नंबर मैं दोबारा लिख रहा हूँ जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है, 9910427422। थ्रू आउट द सेशन आपको मेरे से कुछ भी डिस्कस करना है, कुछ भी आंसर करना है, यू कैन जस्ट क्विकली पिंग ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। तो मैं यहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। कोई भी डाउट है, कुछ भी आप लोगों को मेरे से पूछना है, क्विकली पिंग ऑन दी व्हाट्सएप। And if you don't have any doubt still here, just quickly ping on the WhatsApp, sir clear till here, and make this session very interactive students। यहाँ पे हम मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं अपने अप्रैल और मई डाइट की, क्योंकि अब इसके बाद जो हमारी क्लासेस होगी वहाँ पे हम सिर्फ पढ़ेंगे, पढ़ाई की बातें करेंगे, मस्ती भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा हम पढ़ाई की बातें करेंगे। आज की क्लास में जो आपके मन में क्वेश्चन है एक्चुअल को लेके, कुछ भी है, कोई प्लानिंग को लेके, आपको पर्सनल अपना कोई प्लान बनवाना है, क्विकली पिंग ऑन दी व्हाट्सएप। जितना पूछोगे उतना अच्छा है। देयर इज़ वन क्वेश्चन फ्रॉम प्रियांशी, सर कैन आई ऑप्ट फॉर CM1 CB1? बेटा बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो प्रियांशी का डाउट अच्छा डाउट है कि सर CM1 एंड CB1
क्यों नहीं पिक कर सकते? बिल्कुल पिक कर सकते हो, लेकिन हम हमेशा क्या कहते हैं, एक आप इजी एग्जाम पिक करोगे ना हमेशा अच्छा रहेगा। अगर आप CB1 वर्सेस CB2 की बात करोगे ना प्रियांशु बेटा, तो CB2 थोड़ा सा ईजी है, थोड़ा सा ईजी है। CB2 में आपकी जो अपने 12th तक इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है तो उसका अपर वर्जन, लेकिन बिल्कुल ही फर्क नहीं आ जाता। लेकिन CB1 में जो आपने 12th तक अकाउंट्स पढ़ रखी है और यहाँ जो आप अकाउंट्स पढ़ने वाले हो बहुत डिफरेंट है, बहुत आपको डिफरेंट है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी भी पूछी जाती है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम बोलते हैं पहले आपको CM1 का स्किल डेवलप हो जाए फिर इसको ऑप्ट करना। तो इसलिए हम पहले CB2 को ऑप्ट करने को ही सजेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कुछ बच्चे करते हैं CM1 और CB1 का कॉम्बिनेशन ऑप्ट, बट अगर मेरे से आप सजेशन लोगे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। इंस्टेड अगर आपको इतना चैलेंजिंग बनाना ही है तो आप CS1 और CM1 ऑप्ट कर लो, ठीक है। तो ये किस तरीके का चैलेंजिंग है, CS1 एंड CM1, ये 3 सब्जेक्ट से थोड़ा सा कम चैलेंजिंग है, लेकिन जो मैंने आपको 2-2 सब्जेक्ट्स वाले कॉम्बिनेशन कहे थे उनसे थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग है। इज इट क्लियर? सो देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम रोहन सर, व्हेन विल लाइव क्लास स्टार्ट? बेटा आज से हो गई है स्टार्ट आपकी लाइव क्लासेस। यू विल कीप ऑन getting schedules on WhatsApp from now onwards. Okay, Uday is saying, sir, I want a brief about all the actual subjects mentioned in लाइव स्ट्रीम। बेटा कोई इशू नहीं है इसके ऊपर ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ उदय, जो भी आपके सर्टेन क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके लिए हमारे सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोस बनी हुई है। आप इन एग्जाम्स की बात कर रहे हो, हमारे स्पेशलाइजेशन जो एग्जाम्स है SP सीरीज के, CP सीरीज के, SS सीरीज के, उनके लिए भी हमारी डिटेल्ड हम लोगों ने प्रॉपर एक आपके लिए वीडियोस तैयार कर रखी है। तो आफ्टर दिस सेशन यू कैन जस्ट पिंग ऑन दिस व्हाट्सएप, टीम विल रिवर्ट विद यू विद द एप्रोप्रिएट वीडियो। आपको हर एक एग्जाम के अंदर जो जो हम पढ़ने वाले हैं वो बताया गया है, और उसके प्रॉपर आप ओरिएंटेशन सेशंस भी ले सकते हो। अगर बिल्कुल डिटेल में जाना है, आपको 1-1 घंटा एक सब्जेक्ट के अंदर के कंटेंट समझने हैं, तो आप उन सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन वीडियो मांग सकते हो। दे विल प्रोवाइड यू, माय टीम विल प्रोवाइड यू। Okay, Uday is saying, sir, I am from science background. Can I equally compete against those who are from commerce background? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा उदय ने। चलो सबसे पहले उदय आपकी टेंशन कम करने के लिए मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। अब मैं आपको बताता हूँ पूरे एक्चुअल फील्ड में साइंस स्टूडेंट्स कहाँ एडवांटेज में रहेंगे और कॉमर्स स्टूडेंट्स कहाँ एडवांटेज में रहेंगे। तो साइंस स्टूडेंट्स बेटा कहाँ एडवांटेज में रहेंगे, पहले उसकी बात करते हैं। साइंस स्टूडेंट्स का जो मैथ्स होता है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा कॉमर्स स्टूडेंट्स अच्छा ही होगा, ठीक है, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट एक एवरेज साइंस स्टूडेंट्स का मैथ्स हमेशा एक एवरेज कॉमर्स स्टूडेंट्स के मैथ्स से ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में भी मैथ्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ मैथ्स पढ़ते हैं, और मैथ्स में तो हम RD शर्मा वगैरह करते ही करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एडवांटेज में रहने वाले हो एज कम्पेयर टू कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैथ्स हमारा अच्छा होता है, और मैथ्स का तो आपको पता है भर भर के यूज़ है एक्चुअल साइंस में। अब हम आते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स का एडवांटेज में रहते हैं। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स का एडवांटेज में रहता है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, जो मैंने आपको 2 सब्जेक्ट्स लिखे CB1 और CB2, वो ऑलरेडी इसको पढ़ रखे होते हैं इन देयर क्लास 12। तो उनको लगता है कि जब इनिशियल क्लासेस चल रही होती है CB1 CB2 की, हमें सब कुछ आता ही आता है, तो वो उनको आता होता है। तो वहाँ आप लोग साइंस वाले थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करोगे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में। आपको ये भी नहीं पता होगा कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन वो कॉमर्स वाले वो सब टर्म्स पढ़ के आ रखे होंगे। सिर्फ इतना डिफरेंस है, जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा ये सारा डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो दोनों एट पार है। मैं आपको बता रहा हूँ किसी के पास भी ऐसा नहीं है क्लियर कट एज है। साइंस स्टूडेंट्स के पास कुछ एडवांटेज है, कॉमर्स स्टूडेंट के पास कुछ एडवांटेज है। आई थिंक दिस आंसर्स योर क्वेश्चन उदय, क्विकली यस और नो। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम प्रियांशी, सर व्हेन विल ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट? बेटा ऑफलाइन जो नेक्स्ट क्लास अब हम कंटेंट पढ़ना शुरू करेंगे, इट विल बी टोटली अप टू यू कि आपको ऑफलाइन आके अटेंड करना है, आपको लाइव अटेंड करना है, या आपको बाद में उसका वीडियो देखना है। वो सबसे बैड अप्रोच है बाद में वीडियो देखने वाला। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप या तो ऑफलाइन आके क्लास अटेंड करो या लाइव अटेंड करो, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जहां पे आपको ज़्यादा कन्वीनियंट है। किसी बच्चे को ऑनलाइन देखना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है ट्रैवल टाइम हमारा बच्चे का। कुछ बच्चों को लगता है नहीं, ऑफलाइन आके हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं फैकल्टी के साथ, तो वो ऑफलाइन आ जाते हैं। हमने ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ रखी है। वी हैव टोटल हाइब्रिड बैच, इट्स अप टू यू कि कैसे आपको क्लासेस अटेंड करनी है। आई थिंक दिस answers your question, Priyanshi. Any other questions to anyone? Quickly tell me. सबको समझ आया? आई थिंक सबको एक आइडिया लगा होगा कि हमने कितने एग्जाम्स पिक करने हैं
अप्रैल एंड मई डाइट के लिए। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? तो मैं फिर से एक बार इसको समराइज कर देता हूँ, मैं आप लोगों के लिए इसको समराइज कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं लो से हाई जाता हूँ कि सबसे कम डिफिकल्ट क्या है, मतलब डिफिकल्ट मतलब सबसे कम वर्क आवर्स किस में रिक्वायर्ड है और सबसे ज़्यादा किस में रिक्वायर्ड है। सो फर्स्ट विल बी CS1, सेकेंड विल बी CM1, यहाँ पे मैं ओनली लिख देता हूँ, चलो ओनली CS1, ओनली CM1, देन थर्ड विल बी CS1 प्लस CB2, फोर्थ विल बी CM1 प्लस CB2, फिफ्थ विल बी CS1 plus CM1 and sixth will be CS1 plus CM1 plus CB2. These are the 6 combinations that you can plan for April and May diet. Totally up to you. सबके मैंने आपको जितने आवर्स रिक्वायर्ड है वो मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ। बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जो बच्चे ये प्रिपेयर कर रहे हैं ये वाला, तो उनको लिए तो बेटा ये समझ लो एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अभी मैं इस पे आऊँगा कि कब तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे 6 कॉम्बिनेशंस आपका आज से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने कितने एग्जाम्स के लिए जाना है अप्रैल में डाइट के लिए। अगर आप लोग सीरियस हो अपने एक्चुअल करियर के लिए, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आप फर्स्ट 2 कॉम्बिनेशंस के लिए जाओगे ना, आप बोलोगे सर तो हम तो डिसएडवांटेज में रहेंगे, नहीं ठीक है आप लोग, लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज करो। उस टाइम को आप ये ना हो कि आप इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम कर रहे होने चाहिए। आप कोई क्रिकेट की, वही फिर मैं बोलूँगा, आपने कोई क्रिकेट की अकेडमी ज्वाइन कर रखी है, बैडमिंटन की अकेडमी ज्वाइन कर रखी है, किसी को जिमिंग का शौक होता है आप जिमिंग कर रहे हो, या डांस की अकेडमी ज्वाइन कर रखी है, मतलब कुछ ना कुछ आपकी हॉबीज आपने ज्वाइन कर रखी है, तभी फायदा है। अदरवाइज डेफिनेटली गो फॉर थर्ड एंड फोर्थ कॉम्बो। सो मैक्सिमम ऑडियंस बेटा 70 to 80% ऑडियंस यही कॉम्बिनेशन पिक करती है, रिमेनिंग 10% ये वाला और रिमेनिंग 10% ये वाला। तो मैंने आपको बता दिया है कि मेजरली स्टूडेंट्स कहाँ फॉल करते हैं। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम रोहन, वेरी फेयर क्वेश्चन, बहुत बच्चे पूछते हैं मेरे से, सर आई एम एवरेज इन मैथ्स, विल आई बी एबल टू पास एग्जाम्स। तो देखो बेटा रोहन, 12th तक की कहानी अब खत्म हो गई है, 12th तक की कहानी को छोड़ दो। हम वीक थे एक सेपरेट चीज़ है, हम वीक रहेंगे एक सेपरेट चीज़ है। बेटा वीक थे उसको छोड़ो ना, अब हमारे पास जो टाइम है, तो रोहन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अगले 2 महीने हम लोग मेजरली कहाँ फोकस करेंगे, आप लोगों पे फोकस करेंगे। आप लोगों का जो मैथ्स का स्किल है वो हम बिल्कुल लो से हाई ले जाएं, ताकि जब हम मेन कंटेंट शुरू करेंगे, ठीक है, मेन कंटेंट क्लास में शुरू करेंगे, अब उस पर मैं आऊँगा कि आप लोगों को कैसे टाइम डिवोट करना है। तो जब हम मेन कंटेंट क्लास में फोकस करेंगे, तब आप बेटा एट पार आ जाओ मैथ्स के टॉपर्स के साथ, जिन्होंने मैथ्स में 100 स्कोर कर रखा है, 99 स्कोर कर रखा है रोहन, तो मैं चाहूँगा आप उसके साथ एट पर आ जाओ। तो आपके लिए अगले 2 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल मैथ्स और स्टैट्स का बेसिक सीखने वाले हैं, जो कि आपने क्लास 12th में ऑलरेडी सीख चुके हो, प्लस जो एक्चुअल में यूज़ होने वाला है। जैसे क्लास 12th में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री भी सीख चुके हो, लेकिन उसका एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं है, तो वो हम नहीं करने वाले। हम सिर्फ 12th के मैथ्स के और स्टैट्स के वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपको थ्रू आउट एक्चुअल में यूज़ होने वाला है। इसके बाद आपको एक्चुअल में ऐसा कोई भी ये नहीं आना चाहिए कि सर ये तो हमने मैथ्स में पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। तो ये अगले 2 महीने हमारे लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले 2 महीने हम मैथ्स और स्टैट्स के रिफ्रेशर प्रोग्राम पे ही फोकस करने वाले हैं। इन द मीन वाइल मैं आऊँगा उन बच्चों पे जो ऑलरेडी मैथ्स और स्टैट्स के खलीफे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी मैथ्स और स्टैट्स में 100 नंबर या फिर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ग्रिप बना रखे हैं। तो वो बच्चे क्या करेंगे? एनीवन इन द क्लास। चलो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। तो कुछ बच्चे हैं हमारे पास जो थोड़े एवरेज है मैथ्स में, या फिर जिनके पास मैथ्स थी ही नहीं, ऑल टुगेदर 12th में मैथ्स थी ही नहीं, तो उन बच्चों के लिए तो हम 2 मंथ्स ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। बाकी बच्चे क्या करेंगे? मस्ती करेंगे 2 महीने? नहीं, आप लोगों ने जब ज्वाइन करा था, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 10 दिन पहले ज्वाइन करा था, जो कुछ बच्चे जिन्होंने 20 दिन पहले ज्वाइन करा था, और कुछ बच्चे हैं 1 महीना पहले ज्वाइन करा था। हम लोग प्रॉपर आप लोगों की वीडियो ट्रैकिंग कर रहे हैं। अभी हो सकता है आप लोगों के पास मैसेजेस ना आ रहे हो, क्योंकि हम लोग टोटली ऑक्यूपाइड है सितंबर और नवंबर स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन जैसे ही इनके एग्जाम्स खत्म होंगे सितंबर वालों के, आपके पास नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी कि वाई यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस विद वीडियोज। आप लोगों ने जब ज्वाइन करा है, आपकी क्लासेस उसी दिन से बेटा स्टार्ट हो गई है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर वीडियोस ओनली, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर वीडियोस प्लस लाइव क्लासेस। तो मैंने बहुत सारे बच्चों में एक चेंज देखा है, जिन्होंने लाइव क्लासेस के लिए जो ऑप्ट करते हैं ना,
वो पता नहीं क्यों नहीं समझ आता कि वो वीडियो से क्यों नहीं देखना स्टार्ट करते, अपना टाइम क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे। जो वीडियोस वाले बच्चे हैं वो मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी 50-60% सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके हैं वीडियोस से, तो उनके पास एक बहुत बड़ा एज रहने वाला है आप लोगों के ऊपर। तो जो बच्चा ज्वाइन कर चुका है, जिनके पास ऑलरेडी कंटेंट ब्राउजर पे सारा कंटेंट अवेलेबल है देखने के लिए, आप लोगों के पास चैप्टर वाइज वीडियोस है अवेलेबल देखने के लिए, आपके पास पास्ट पेपर की वीडियोस है, आपके पास एक्स सीरीज की वीडियोस है, आपके पास समरी लिस्ट्स है, आपके पास असाइनमेंट्स है, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव कैलकुलेटर वीडियोस, यू हैव टेबल्स वीडियोस, यू हैव स्टैट्स रिफ्रेशर वीडियोस, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग। तो आप लोग बेटा उसको देखना स्टार्ट करोगे, स्टडी कैलेंडर ओपन करो, स्टडी कैलेंडर CS1 का ओपन करो, CM1 का ओपन करो। CS1 का हमने स्टडी कैलेंडर एक 60 डेज वाला बना रखा है, CM1 का स्टडी कैलेंडर हमने एक 84 डेज वाला बना रखा है। उसके थ्रू आप अपना सेल्फ प्लान बना के कंप्लीट करो ना। अगर आपको 60 डेज वाला CS1 का थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, उसको मॉडिफाई करके 90 डेज में कन्वर्ट कर दो। मतलब जो टास्क हमने उस कैलेंडर में 2 दिन में लिख रखे हैं, उन टास्क को आप 3 दिन में कंप्लीट कर लो। लेकिन पढ़ाई तो शुरू करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई शुरू करो बेटा, आज से ही पढ़ाई शुरू करो। अगर आपको लग रहा है कि हमने एक सब्जेक्ट ऑप्ट करा है, तो सोचो हमने उस एक सब्जेक्ट को 2 से 3 महीने में खत्म करना है, फिर हम दिसंबर में जाके सोच लेंगे। जो बच्चे अब उनको डाउट आ रहा है कि हम 2 कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वो एक तो अच्छे से करो। आप एक तरफ तो डाउट में हो कि हम 2 कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और एक पे भी आप फोकस नहीं कर रहे हो। तो एक और सेट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं उनकी भी बात करूंगा आपसे। क्या आते हैं कि वो एक ही ऑप्ट करते हैं, फरवरी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, और जब एग्जाम फिल करने का टाइम आता है तो हमारे पास आते हैं, सर क्या हम ये सितंबर में दे दें। तो कुछ नहीं कर रहे, आप अपने आप को पागल बनाओगे। अगर आप सितंबर से पेपर आपने ऑप्ट कर लिया था और आपको अगले सितंबर में एक एग्जाम देने की नौबत आ रही है, दैट मीन्स यू आर मेकिंग फुल आउट ऑफ योर सेल्फ, नथिंग एल्स। तो मैं थोड़े से हार्श वर्ड्स यूज़ करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग अपने करियर के साथ जस्टिफिकेशन ना करो। वो चीज़ बेटा बहुत ज़रूरी है। आज से आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम ये कर रहे हैं तो अच्छे से करें, नहीं तो छोड़ दो। आप बोल दो अपने पेरेंट्स को कि हमें कोई और स्ट्रीम करनी है, ठीक है, लेकिन जितना इस स्ट्रीम को करके आपको इजीली इस वक्त मार्केट में जॉब्स अवेलेबल है, आई डोंट नो कि वो किसी और स्ट्रीम में अवेलेबल है या नहीं है, बट येस थोड़ा सा आपसे ये स्ट्रीम एफर्ट्स मांगेगी, लेकिन उसके बाद आपको बहुत अच्छे वहाँ पे वो फल देने वाली है। तो यहाँ तक अगेन किसी को कोई भी डाउट, किसी को कुछ भी आ रहा है कि सर हमें कितने सब्जेक्ट्स करने चाहिए, हमारे लिए बताओ, या फिर किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है क्विकली, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट डन विथ टुडेज थिंग्स। थोड़ा सा बस मुझे आपको एग्जाम डेट्स दिखानी है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के क्या गोल्स होने चाहिए मंथ बाय मंथ। क्विकली स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क टिल हियर, डू रेज दैट इन द चैट सेक्शन। Okay, there is one question from Kirti. Sir, when should someone start preparing for CS1 April-May session 2024 if we also want to give ACET exam for November-December 2023? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो थोड़ी सी हम II वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मैं वेट ही कर रहा था कि कोई II वाला बच्चा मेरे से क्वेश्चन रेस करे। तो II वालों के लिए एक तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी ACET दे चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिसंबर 2023 वाला ACET प्लान कर रहे हैं। बेटा आप लोगों को सबसे बड़ी पहली चीज़, इस एग्ज़ाम की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप कुछ भी अलग नहीं पढ़ रहे एक्सेप्ट स्टैट्स के 3-4 टॉपिक्स। यहाँ पे हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो हम 12th तक पढ़ के आए हैं, जो हमने CUET की तैयारी करी है। ईच एंड एवरीथिंग रिमेन्स सेम। सिर्फ स्टैट्स के हमारे 3-4 टॉपिक्स हैं जो हार्डली अगर आप 2 से 3 दिन ढंग से बैठ के पढ़ोगे तो वो कवर हो जाएगा। तो ACET जैसे एग्ज़ाम के लिए आपको वेट नहीं करना। आप अगर श्योर हो कि मुझे देखो, अगर आपके ACET के रिजल्ट के बेसिस पे अगर आपको डिसीजन लेना है कि हमने एक्चुअल करना नहीं करना, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो बच्चा ACET देता है वो अनश्योर होता है कि हमें एक्चुअल करना नहीं करना, क्योंकि वो तभी देता है जब उसने एक्चुअल करनी है। तो इफ़ यू आर श्योर कि हमें एक्चुअल करनी है, डेफिनेटली स्टार्ट विद CS1 एंड CB2। तो आप लोगों को मैंने सिर्फ CS1 की बोला क्योंकि इसके थ्रू ना यहाँ पे जो स्टैट्स के टॉपिक आने हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स में। तो यस कीर्ति, यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CS1 CB2 फॉर May 2023 एग्जाम्स। और मैं कह रहा हूँ 0.1%, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि आप क्लियर नहीं करोगे, 0.1% बेटा अगर ACET क्लियर नहीं भी हुआ 0.1%, तो एक और ACET आ जाएगा, वो दे देना। कई बार क्या होता है, हमारा मई से पहले वो एक और ACET लॉन्च कर देंगे मार्च में, वो वाला देके आप मई एग्जाम्स के लिए बैठ जाना। और अगर मैं कह रहा हूँ फिर भी अगर आपको लग रहा हो, उसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास क्या खुला रहेगा, आप CS1 CB2 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुके होगे और आप डायरेक्टली उसको IFOA के लिए भी फिल कर सकते हो। सो यू हैव दिस लिबर्टी। तो बिल्कुल डेफिनेटली नो वन शुड
restrict themselves to preparing for ACET if they have decided to go for actual science exams. Definitely go for CS1 CB2 and start it straight away. आज से ही आपकी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, आई एम गिविंग यू अगेन 2 minutes ब्रेक, देन वी विल जस्ट कम टू दी लास्ट सेक्शन ऑफ टुडे सेशन कि हाउ व्हाट यू शुड डू इन नेक्स्ट 1 or 2 months. वो हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे अगले 2 महीने में और आप लोगों को क्या करना है. Still waiting for your responses, students. If you have anything, you can raise it straight away. अपने तक रखोगे तो फिर सेशन अटेंड करने का फ़ायदा नहीं होगा. ये सेशन आप लोगों का ही है, कुछ भी पूछ सकते हो आप लोग मेरे से. मैं हमेशा मानता हूँ जो नहीं पूछता वो नुकसान में रहता है. ठीक है, लेट अस कम टू दी लास्ट सेक्शन ऑफ टुडे सेशन. इन द मीन वाइल you can just keep on putting your messages in the chat section. Now students, we are standing on 3rd September right now. तो आज हम 3rd September पे हैं. ठीक है, अब हम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगे. ठीक है, लेट मी शो यू माई स्क्रीन. व्हाट आर द एग्जाम डेट्स? तो बेटा दीज आर द एग्जाम डेट्स for IFOA April diet. Look at it very carefully. 8th April CM1A exam, 9th April CM1B exam, 11th April CS1A exam, 12th April CS1B exam and then 19th April CB2 exam. तो आप देख रहे हो CM1 और CB2 ऑप्ट करेंगे तो भी ऑलमोस्ट 10 दिन का गैप है. CS1 और CB2 ऑप्ट करेंगे तो भी ऑलमोस्ट हमारे पास 7 से 8 दिन का गैप है. इज़ इट क्लियर? तो मेरे से किसी और बच्चे ने पूछा था CB1 का, तो CB1 भी ऑप्ट कर सकते हो, उसमें भी गैप अच्छा खासा है, लेकिन अगेन हम आपको सजेस्ट CB2 ही करेंगे पहले जाने के लिए. नाउ लेट मी शो यू II डेट्स. एक हमारे पास कुछ बच्चे II के भी जुड़े हुए हैं. तो II की बेटा अगर मैं आपको डेट्स दिखाऊं, एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 21 May 2024. तो हमारा CB1 का है सबसे पहला एग्ज़ाम. देन 22 मई को हमारा CB2 का एग्ज़ाम है. देन वी विल बी हैविंग 25 मई को CS1A, 28 मई को CM1A, देन 29 मई को CS1B, 30 मई को CM1B. तो यहाँ पे आपके पास A और B एग्ज़ाम में भी काफ़ी गैप है. ये एक प्लस पॉइंट है हमारे पास II में, लेकिन इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है. मैं तो बोलूँगा जितना जल्दी हो उतना बढ़िया है. आप लोगों को दोबारा सारा कोर्स रिवाइज करना पड़ता है. उसमें क्या होता है, जब कंसेक्यूटिव डे में A और B का एग्जाम होता है, आपने सब कुछ पढ़ रखा होता है, आपको सिर्फ जल्दी रिवाइज करके आप सोचते हो जल्दी ये बला टले पेपर ख़त्म हो, है ना. ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन, सर व्हाट विल बी दी मोड ऑफ एग्जाम्स. तो बेटा IFOA के जो आपके एग्जाम्स होंगे वो ओपन बुक होम बेस्ड एग्जाम्स है. आप घर से बैठ के ही एग्जाम्स दोगे. आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ एनी मटेरियल. यू हैव टू टाइप योर आंसर्स ऑन वर्ड एंड जस्ट अपलोड दैट
आंसर शीट्स इन ऑन योर पोर्टल। आपका एक IFOA का पोर्टल बनेगा जब आप एग्जाम फिल करोगे और आपको उसके ऊपर अपलोड करना होगा अपना आंसर शीट। अगर मैं आपके पास आऊँ II के एग्जाम्स के लिए तो वो आपके अगेन ट्रेडिशनल कॉपी पेन बेस्ड एग्जाम्स है। आपको वही आंसर शीट्स मिलेगी, उस पर आप लिखोगे, सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा, ओपन बुक नहीं होगा। आप एग्जाम टाइम पे सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हो, एक एक्चुअल टेबल्स और एक कैलकुलेटर्स। तो ये फ़र्क है हमारे II और IFOA के एग्जामिनेशंस में। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया एक नंदा का। नंदा इज सेइंग सर विल द लाइव क्लास टाइमिंग्स क्लैश विद आवर कॉलेज टाइमिंग्स। नहीं बेटा, ये हम बहुत ज़्यादा इसको केटर करते हैं कि आप लोगों से क्लैश ना करें, तो मेजरली क्लासेस हम सैटरडेज एंड संडेज में रखते हैं। बट फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उसके लिए, अगर हमारे लिए पॉसिबल होगा हम आगे पीछे कर देते हैं क्लासेस। इज इट क्लियर? नो इश्यूज इन दैट। मेजरली हम एक्चुअल में क्लासेस, जो मेन क्लासेस होंगी वो हमारी सैटरडे संडेज होंगी। रिमेनिंग जो हमने क्लासेस लेनी है, कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेनी है या फिर कुछ हमने कॉन्सेप्ट को रिपीट करना है या फिर डाउट्स लेने हैं, तो वो हम वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे लेंगे, ताकि कोई बच्चे वर्किंग स्टूडेंट्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स नहीं भी अवेलेबल तो उनका कुछ मिस ना हो। कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ भी हम नया करेंगे, तो वो हम सैटरडेज एंड संडेज को ही करने वाले हैं। इज इट क्लियर नंदा? तो डेट शीट्स सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? IFOA दोनों की मैंने आपको डेट शीट्स दिखा दी है। अब हम चलते हैं लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज सेशन कि हमने करना क्या है अगले 2 महीने, या फिर से अगर हमारा पूरा 7 मंथ्स का अगर मैं आपको प्लान बताऊं तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम नेक्स्ट वीक से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपने मैथ्स स्टैट्स रिफ्रेशर सेशंस। तो जो बच्चे एवरेज थे या फिर जिनको 12th करियर टाइम हो गया या जिनको अपने मैथ्स और स्टैट्स के स्किल्स रिवाइज करने हैं जो कि एक्चुअल में यूज़ होने वाले, दे शुड डेफिनेटली अटेंड ईच एंड एवरी सेशन फ्रॉम दिस सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में मैथ्स और स्टैट्स के वो वाले टॉपिक्स स्क्रैच से पढ़ेंगे। ये भी नहीं रिवाइज करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन एक्स क्या होता है। आप लोगों को बहुत बच्चों को लगेगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन मैं उन बच्चों को बिल्कुल हेल्प करना चाहूँगा जिन्होंने मैथ्स पढ़ी ही नहीं है 12th तक। ठीक है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर ग्रेजुअली लेवल अप लेके जाएंगे जितना आपको एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। तो अगले 2 मंथ्स मेरा फोकस इन चीज़ों पे रहने वाला है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम मेन कंटेंट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करने वाले। मैं हर 10 डेज़ या फिर 15 डेज़ में एक सेशन रखूँगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जहाँ पे मैं आप लोगों की प्रोग्रेस देखूंगा। क्योंकि मैं आपको बोल दिया कि आज हम 3 सितंबर पे खड़े हैं, तो आप लोग आज से ही अपना वीडियोस देखना स्टार्ट करो। CS1, CM1, CB2 जो भी आपने सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे हैं या फिर करने वाले हो, तो वहाँ पे आपके पास एक सेपरेट डेडिकेटेड डाउट्स पोर्टल है। थ्रू आउट स्टडीज़ आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप उस पोर्टल पे डाल सकते हो। आप लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो पोर्टल पे आंसर करके। कोई नहीं आंसर करेगा तो मैं उसको डाउट सेशन में ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट येस, 2 मंथ्स हम ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। एंड वंस दोज 2 मंथ्स आर ओवर, मेरे पास एक भी बच्चा नहीं आना चाहिए कि सर हमें ये बता दो आइलेट रूल कैसे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन करते वक्त। अभी आप इन सेशंस में मेरे से जितना मर्जी ये चीज़ें पूछो, लेकिन जब हम अपना CS1, CM1 के मेन क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले सेशन स्टार्ट करेंगे, तब मेरे से ये कोई भी बच्चा नहीं पूछना चाहिए कि आइलेट रूल कैसे लगाएंगे। ठीक है, पूछ सकते हो, मैं मजाक कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा। बट यस, अच्छी बात होगी कि अगर वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी पहले से ही बेटा कवर करके रखोगे। इज इट क्लियर? और जो बच्चे ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है ऑप्ट करे हुए कोर्सेज या 15 डेज हो चुके हैं सब्जेक्ट पढ़े, बेटा वीडियो ट्रैकिंग अब स्टार्ट हो जाएगी, मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। फिर मत बोलना सर फैमिली इमरजेंसी है, घूमने गए हुए हैं, कॉलेज एग्जाम्स चल रहे हैं। तो हम सिर्फ ये पूछेंगे कॉलेज एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, 1-1.5 महीने से क्यों नहीं पढ़ाई करी है? तो बिल्कुल अपने पोर्टल पे जाओ, वीडियोस डाउनलोड करो, वीडियोस देखना स्टार्ट करो। डाउट्स आ रहे हैं तो उसको व्हाट्सएप पे पूछते रहो। कोई आपको ऐसा लग रहा है कि किसके बाद क्या देखना है या फिर उसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आई विल ऑल्सो आंसर योर क्वेश्चंस। अगर मुझे एक सेशन की रिक्वायरमेंट लगी तो आई विल कीप ऑन कीपिंग सेपरेट डेडिकेटेड सेशंस एज वेल। तो वो तो सेशंस रहेंगे जहाँ पे हम लोग आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे, उसके अलावा वो सेशंस रहेंगे जहाँ पे हम प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे। लेकिन और भी मैं सेशंस रख लूँगा अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आएगी करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम मैथ स्टैट्स, वो सेपरेट है, उसको सेपरेट रख दो, वो तो आपके चलने ही चलने हैं। जिसको भी ये डाउट रहता है कि हम मैथ स्टैट्स में स्ट्रांग नहीं है या फिर हमारे पास नहीं थी, उनकी सारी ये शिकायतें दूर हो जाएगी। और जो 100 आउट ऑफ 100 वाले मैथ्स में है, मेरे पास देखा था कुछ बच्चों का आया था सर आई हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स,
तो वो बच्चों को अगर मन करे तो सेशन अटेंड कर लो, नहीं करे तो मैं आप लोगों को इसके लिए छूट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, अगर करना चाहो देखो गेन ही होगा कुछ या रिवाइज ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा ब्रीफ्ड अप हो, आपको अच्छे से आती है, तो फिर आप क्या करोगे, आप बिल्कुल बेटा CM1 CS1 को अच्छे से करना स्टार्ट कर दो, ताकि जो बच्चों ने 3 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे हैं, चलो मैं टाइमलाइंस आपको बता देता हूँ कि आपका क्या एम होना चाहिए। जो बच्चों ने 3 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे हैं उनका टारगेट होना चाहिए जैन एंड तक तीनों सब्जेक्ट्स के सारे स्टेप्स, ओरिएंटेशन सेशन में मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के सारे स्टेप्स, कंटेंट वीडियोस, पास्ट पेपर क्वेश्चंस, एक सीरीज क्वेश्चंस, बुक के पीछे के क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, यूनिट टेस्ट, सब कुछ आपका जैन एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फरवरी मार्च आप सिर्फ रिवीजन करोगे इन तीनों सब्जेक्ट्स का। जिन बच्चों ने 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे हैं तो वो लोगों को थोड़ा सा और मैं छूट दे रहा हूँ, वो लोग मिड फरवरी मैक्स एंड ऑफ फरवरी तक सब कुछ ख़त्म कर देंगे। और जो बच्चा एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहा है वो थोड़ी सी मस्ती मारो, ठीक है, तो वो ऑप्शन है आपके पास मिड मार्च तक भी सब कुछ ख़त्म करने का। इट्स अप टू यू हाउ मच टाइम यू वांट टू डिवोट इन योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, विच एवर ईयर यू आर इन। बट येस, जितनी आज ज़्यादा मेहनत कर लोगे उतना कल के लिए आप काम कम छोड़ रहे हो, ये हम बचपन से सीखते आए हैं। विद दिस आई एम डन विद टुडेज सेशन। अब आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चंस बचे हैं वो आप लोग डाल सकते हो, अदरवाइज वी विल वाइंड अप। आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 5-10 minutes more. Okay, I have one question already. From when should we start practicing typing for the exams? A very nice question from ख्याति। तो जैसे भी मैंने आपको बताया था बेटा, IFOA के एग्जाम्स आपके वर्ड बेस्ड एग्जाम्स हैं, तो ये वाला जो टाइम है ना, जो मैंने आपको बोला, ये जो अगले 2-3 महीने हैं जहाँ पे हम लोग बाकी बच्चों के साथ मैथ स्टैट्स रिफ्रेश कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी टाइपिंग स्पीड पे ख्याति बेटा इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो। आज से ही आप क्या कोशिश करो कि हम अगर दिन में 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग 4 क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर डे, वी आर प्रैक्टिसिंग 2 क्वेश्चंस directly on copy pen and 2 questions we will replicate in MS Word। ये आप लोगों का आज से ही टारगेट होना चाहिए। अ गुड क्वेश्चन रेज बाय ख्याति। तो इसके लिए हमें डिले नहीं करना, ताकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आते आते हम एक बहुत अच्छा स्पीड गेन कर लें अपनी टाइपिंग के लिए। आपके पास अगर एक नोटेशन शीट आई होगी, नहीं आई हुई, तो इंस्टीट्यूट को मैसेज कर दो। प्रॉपर जो आपको एक्चुअल के नोटेशंस यूज़ करने हैं वो शीट में बता रखा है। एक वीडियो भी हमने बना रखी है कि कैसे आपको टाइपिंग करनी है वर्ड पे, वो भी आप लोग इंस्टीट्यूट से, मेरी टीम से ले सकते हो, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे आफ्टर दिस सेशन। किसी को करते वक्त, पढ़ते वक्त कुछ भी रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, वो अपने तक मत रखो, डायरेक्टली व्हाट्सएप थ्रो करो। कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप थ्रो करो, विद इन 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से रिवर्ट आ जाएगा। बट ऑब्वियसली वर्किंग आवर्स में, आफ्टर 6 करोगे तो फिर नेक्स्ट डे रिवर्ट आएगा। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टिल हियर? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? इसके अलावा किसी को कोई भी क्वेश्चंस है, यू कैन रेज दैट। आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 5 minutes more. एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकते हो आप। दिस इज एन ओपन सेशन। कुछ भी अगर एक्चुअल को रिलेटेड अभी भी कोई अनक्लियरिटी है या फिर कुछ भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं है कि कितने सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए, एक्चुअल में क्या है, IIA से जाएं, IFOA से जाएं, कुछ भी अगर ऐसा डाउट आ रहा है बेटा, पूछ सकते हो आप। Okay, there is one question that I have missed earlier from Paridhi. Sir, what is a good minor with stats, maths और eco which will help me in actuary? बेटा मैथ्स ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्चुअल के सब्जेक्ट्स में पढ़ लोगे। परिधि बेटा, ओके, देयर इज़ वन क्वेश्चन, सर व्हाट आर दी टाइमिंग्स ऑफ क्लासेस? उसके लिए वरी मत करो रोहन बेटा, आपको व्हाट्सएप पे हर वीक का नोटिफिकेशन आ जाएगी कि किस दिन क्लास है और किस टाइम पे क्लास है। नो नीड टू वरी फॉर दैट। जनरली जो क्लास की टाइमिंग्स रहेंगी वो 11 to 6 के बीच में ही हम रखते हैं। 11 AM to 6 PM के बीच में ही आपकी क्लास टाइमिंग्स होंगी।
So I think no more questions. Last 2 minutes more. Still waiting for your questions, students. Otherwise, we are done for the day. Quickly put that in the WhatsApp chat if you have anything to ask me. बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है बेटा, बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको कोई IAS या फिर कैट की प्रिपरेशन की तरह पागलों की तरह नहीं पढ़ना। वो पागलों की तरह सिर्फ तब पढ़ना पड़ेगा जब आप लोग स्टार्टिंग में कुछ नहीं करोगे और फरवरी में एग्जाम्स फिल करने के बाद अपनी मेन पढ़ाई शुरू करोगे, विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू। ऐसा नहीं है उससे रिजल्ट्स नहीं आते, रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन फिर भी इतना प्रेशर क्यों देना अपने दिमाग पे। आज से ही पढ़ना शुरू करो ना। अगले 2-3 महीने में जो एक्स्ट्रा पढ़ लिया वो उसके अगले 2-3 महीने उतना ही रिलैक्स्ड रहने वाले। जो इस 2-3 महीने में ज़्यादा मस्ती कर लेगा वो अगले 2-3 महीने ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बैलेंस रखो, स्टार्टिंग से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बोल रहा 6-7 आवर्स आपको डिवोट करने की ज़रूरत है। आज से ही 3-4 आवर्स डेली डिवोट करो बेटा, और अच्छा आप टारगेट्स कंप्लीट कर लोगे उसके थ्रू। ठीक है, आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस वाइंड अप दिस सेशन हियर ओनली। इसके अलावा भी अगर आपको बेटा कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, इफ यू हैव एनीथिंग टू डिस्कस, फील फ्री टू पोस्ट दैट ऑन दी व्हाट्सएप चैट। और अगर आपको कोई पढ़ाई करते हुए कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, फील फ्री टू पोस्ट दैट ऑन डाउट्स पोर्टल दैट इज अवेलेबल ऑन योर कंटेंट ब्राउजर ओनली। अगर आप मोबाइल ऐप से वीडियोस देख रहे हो तो उसके अंदर भी डाउट्स पोर्टल का ऑप्शन है। पढ़ते हुए कोई भी डाउट आ रहा है, डू पुट दैट ऑन डाउट्स पोर्टल। ओके, विद दैट नोट लेट अस वाइंड अप टिल हियर। So that's it from my side. We'll continue in the next class.